Good evening, everyone. Let's continue with revision. And now, guys, in our last lecture, we had started with entropy. First of all, tell me what is entropy. Chalo, what is entropy? So, yep, it is measurement of disorder. Measurement of disorder represented by small s. Okay. What is its formula? For entropy, we have formula Q reversible upon T. And what is the formula for change in entropy? So, same formula is there, Q reversible upon T. And what is the formula for small change in entropy? So dq reversible upon d. Now, guys, from this formula, we had derived different types of entropies. Okay, I have different formulas for entropy for different processes. And first process कौन सी थी इसमें? So first process was for ideal gas. Now for ideal gas, what we had derived? So we had derived delta S is equals to N CV ln of T2 upon T1 plus NR ln of V2 upon V1, or second formula was delta S is equals to N Cp ln of T2 upon T1 plus NR ln of P1 upon P2. These two formulas are there. Now, guys, if we are considering a isoporic process, इस टाइप के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे. आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक आइगेसिक किया था और एक आइसोथर्मल किया था. ऐसे कुछ 3-4 क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने. तो गाइस, इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस वी ऑल नो that delta V is equals to 0. That means initial volume is equals to final volume. And guys, log of V2 upon V1, अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो इट विल बिकम log of 1 या फिर ln of 1, एंड ln of 1 इज 0. परफेक्ट, ठीक है. तो गाइस, यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है वो 0 बन जाएगी. एंड अगर ये वाली वैल्यू 0 बन गई तो व्हाट यू विल गेट चेंज इन एंट्रोपी इज n cv ln of T2 upon T1. Getting it? Now, guys, after isocoric process, we can get a isobaric process. Now, in this case of isobaric process, delta P is equals to 0. So P1 is equals to P2, and then ln of P1 upon P2 is equals to 0. Getting it? So which formula will derive? Change in entropy is equals to N Cp ln of T2 upon T1. समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा. This part will become 0. ठीक है. Now, in case of isothermal process, what will happen? Delta T is equals to 0. So T2 is equals to T1, and then ln of T2 upon T1 will become 0. And guys, so which two formulas we will have? Delta S is equals to NR ln of V2 upon V1. समझ में आ रहा है? ये हम लोगों ने ये वाला पार्ट 0 कर दिया, या फिर ये वाला पार्ट 0 हो सकता है. तो एक तो NR ln of V2 upon V1 या फिर NR ln of P1 upon P2. तो this or else delta S is equals to NR ln of P1 upon P2. These two formulas are valid over here. And finally, in case of adiabatic process, Q is equals to 0. So guys, since Q is equals to 0 and our formula is delta S is equals to Q upon T, Q reversible या फिर Q upon T. So finally, delta S will become 0. So for adiabatic process, delta S is equals to 0. Remember this. Okay. Can we write this? Yes, you can. So complete this fast. मेरे साथ ही लिखोगे तो अच्छा ही है.
Okay, जिन लोगों का लिखना बाकी जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज ये लास्ट टाइम की रिवीजन हो रही है, सो इट शुडंट टेक दैट मच ऑफ टाइम टू राइट डाउन. ओके, नेक्स्ट. So guys, next thing is second process was for heating and cooling. याद होगा तुम लोगों को, ठीक है. So second process is for heating and cooling. Heating and cooling. Okay. Now guys, for heating and cooling हम लोग usually mass use करते हैं, ठीक है. 20 ग्राम सब्सटेंस हीट किया, 10 ग्राम सब्सटेंस हीट किया, तो फॉर्मूला फॉर डेल्टा एस बिकम्स ms ln of T2 अपॉन T1. बस इतना ही है, ठीक है. यप, दिस इज ऑल्सो रिविजन. थर्ड प्रोसेस हम लोग ने जो देखी थी वो देखी थी फेस चेंज. एंड फोर्थ प्रोसेस जो हम लोग ने देखी थी मैं वो यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन, ठीक है. बिकॉज दोनों के लिए हम लोगों की कंडीशन सेम है. किसी को याद है इनकी कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है. ये दोनों चीजें यहाँ पे कांस्टेंट लगती है. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. तो गाइस, अगर ये दोनों कंडीशन यहाँ पे कांस्टेंट हो गई तो डेल्टा एस इज क्यू अपॉन टी, एंड क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर is called as delta H. So it will become delta H upon T. Getting it? Over here, S is specific heat capacity. Specific heat capacity. इसके ऊपर हम लोगों ने एक लास्ट टाइम क्वेश्चन भी किया था. ओके, नाउ गाइस, these all conditions should be satisfied, ठीक है. अब ये इतना हम लोगों ने देख लिया था, राइट. इसके अलावा और कुछ देखा था क्या? तो गाइस, हम लोगों ने उसके बाद स्लॉट देखा था. क्या देखा था? स्लॉट. तो slot deals with there is some latency, I guess. Wait a minute. I don't know why, but my laptop is not working properly nowadays. That is not. Wait a minute. Let me use extra tabs. Why it is happening? No, it is not loaded. It is literally brand new. Okay. I don't know why, but ठीक है, चलो. So yeah, I know I am lagging. Right now I think it is fine. Yeah, it is working properly now. तो guys, हम लोगों ने slot देखा था, and slot deals with total entropy, ठीक है. Slot deals with total entropy. Now, first of all, tell me what is the meaning of total entropy? What is the meaning of total entropy? Entropy of system. Perfect. Correct बोल रहे हो. Okay, just a minute. इसकी चार्जिंग एक्चुअली कम हो गई है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, I guess. Total entropy means entropy of universe. Perfect. And entropy of universe is nothing but system plus surrounding, right? So entropy of system, yeah, now it is working properly, plus entropy of surrounding. Okay. So guys, in this case, we are more interested in system या surrounding. What do you think? We are more interested in system या surrounding? Obviously, we are more interested in system. ठीक है. So this is the limitation that we don't give a damn about surrounding. ठीक है. हम लोगों को surrounding के बारे में कुछ information की जरूरत नहीं है. हम लोगों को कुछ पढ़ी ही नहीं है. And still we have to calculate it. Why? Because slot makes us calculate it. And why do we need to calculate? Because from entropy of universe, from total entropy, we can predict direction of reaction. या फिर if the reaction is spontaneous or non-spontaneous. How? If total entropy is positive, मुझे बताओ, if total entropy is positive, reaction is spontaneous या non-spontaneous? Reaction is spontaneous. If total entropy is equals to 0, then the reaction is at equilibrium. And if total entropy
is less than 0, then reaction is नॉन स्पॉन्टेनियस। ये याद है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही किया था, राइट? सो गाइस, हम लोगों को रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है वो देखना है, तो वी नीड टू फाइंड एंट्रोपी। बट यार अपने को एंट्रोपी निकालते वक्त सिर्फ सिस्टम की निकालनी है, सराउंडिंग की हम लोगों को निकालनी है ही नहीं। बट अगेन दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच वी नीड टू ओवरकम। ठीक है, तो टू अवॉइड कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग we came up with a new function which is Gibbs free energy. गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, बट फर्स्ट विल फिनिश विद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्लॉट। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग खत्म कर देते हैं एंड देन विल कंटिन्यू विद गिब्स फ्री एनर्जी। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट लिख के देने के पहले, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट लिख के देने के पहले लेट्स स्टार्ट विद इट्स एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो हाँ, यहाँ से रिवीजन इज ओवर। यप, रिवीजन इज ओवर। तुम लोग यहाँ से ये नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्लॉट, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो गाइस, आई हैव अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ठीक है, ऐसे एक एक एटम्स ऐसे मस्त में लाइन में यहाँ पे बैठे हुए हैं। कैन यू सी इट? अब मुझे बताओ, इसमें एंट्रोपी बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? इट्स एंट्रोपी इज मैक्सिमम या मिनिमम? इट्स एंट्रोपी इज मिनिमम, ऑलरेडी इट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ सॉलिड विच टाइप ऑफ एंट्रोपी इज देयर, या फिर विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज देयर? मुझे बताओ सॉलिड्स में यार डिसऑर्डर कौन सा रहेगा? विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज प्रेजेंट इन सॉलिड्स? ये तो एकदम ऑर्डरली मैनर में ही है, तो इनमें डिसऑर्डर है तो कौन सा है? तो गाइस याद रखो, सॉलिड्स आर कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग। दे हैव वाइब्रेशनल डिसऑर्डर। गेटिंग इट? जस्ट अ मिनट, मेरे मोबाइल से इंटरनेट कनेक्शन निकल गया है। हाँ, so they have vibrational disorder. हाँ, so guys, solids have vibrational disorder. अब मैं क्या कर रहा हूँ? I am decreasing its temperature. Let's assume in the beginning it was present at 0 degree Celsius, and now from 0 degree Celsius I have taken it to minus 50 degree Celsius. Now tell me, on decreasing temperature its entropy will increase or it will decrease? On decreasing temperature its entropy will increase or decrease? टेम्परेचर डिक्रीज करने से एंट्रोपी कम होगी। वेरी नाइस गाइस, हम लोग उसको कूल डाउन कर रहे हैं तो उसकी एंट्रोपी कम होगी। ठीक है, तो इट्स एंट्रोपी डिक्रीजेस। ओके, नाउ गाइस आई हैव अगेन डिक्रीज्ड इट्स टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेल्सियस। तो अभी इट इज एट माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो माइनस 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाऊंगा तो इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? तो कूलिंग हो रही है, तो इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। मॉलिक्यूल्स का मोशन जो है वो धीरे धीरे स्लो होते जाएगा। ठीक है, तो इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। नाउ फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, आई हैव टेकन इट टू माइनस 150 डिग्री सेल्सियस। व्हाट डू यू थिंक? इट विल अगेन डिक्रीज और कम हो जाएगी, राइट? अब गाइस ऐसे कम होते होते मिनिमम एंट्रोपी की वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम एंट्रोपी की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। वेरी नाइस। तो व्हाट डू यू थिंक, एट विच टेम्परेचर एंट्रोपी विल बिकम 0? माइनस 200 पे भी वो 0 हो गई, तो एट विच टेम्परेचर एंट्रोपी विल बिकम 0? वेरी नाइस, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। तो एट 0 केल्विन, एंड 0 केल्विन इज माइनस 273 केल्विन। एट दिस टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम विल बिकम 0। ठीक है, एक्चुअली माइनस 173.15 रहते हैं। प्लीज मैसेज में टाइप करना मत स्टार्ट कर दो कि सर 15 रहेगा, बट एट माइनस 273 केल्विन, राउंड फिगर, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम विल बिकम 0। ठीक है, एंड दिस इज, हाँ सॉरी, मैंने गलती से डिग्री सेल्सियस से स्केल ही चेंज कर दी। दिस टेम्परेचर विच मीन्स 0 केल्विन, एंड एट दिस टेम्परेचर इट विल बिकम 0। ठीक है, सो गाइस दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज प्लॉट, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्लॉट is
at entropy of a perfectly crystalline substance at absolute zero, at absolute zero. Now, what is the meaning of absolute zero? 0 Kelvin becomes 0. Okay. Now, this is our statement. And remember this statement is applicable for a perfectly crystalline compound. Now, what is the meaning of perfectly crystalline compound? देखो, एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. डायग्राम इज नॉट नेसेसरी एक्चुअली. अब मेरे पास अगर ऑक्सीजन है सॉलिड फॉर्म में, तो ऑक्सीजन के एटम्स अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में है तो ये ऐसे कुछ दिखेगा. कितना मानते हो? यस गाइस, इज इट करेक्ट? फाइन. तो ऑक्सीजन ऐसे कुछ दिखेगा एंड दिस ऑक्सीजन molecule or this oxygen compound is perfectly crystalline. This is perfectly crystalline. Why? Because all oxygen molecules are arranged in a perfect arrangement. ठीक है, या फिर ऑर्डरली मैनर. अब उसी बदले अगर मैं HCl का एग्जांपल, तो HCl परफेक्टली क्रिस्टलाइन कब बनेगा? जब H के बाजू में Cl आएगा. हर एक H के बाजू में Cl आ रहा है, यहाँ पे भी HCl. अब मुझे बताओ वापस H के नीचे H आएगा या H के नीचे Cl आएगा? तो H के नीचे Cl आना चाहिए. देन अगेन ClH. आर यू गेटिंग इट? बिकॉज H प्लस Cl माइनस, तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के नीचे आने चाहिए. अगेन Cl के नीचे क्या आना चाहिए? H आना चाहिए. तो HCl अगेन H के नीचे क्या आना चाहिए? Cl. तो ClH. नाउ दिस इज परफेक्टली क्रिस्टलाइन. ठीक है. अगेन H के नीचे क्या आना चाहिए? सॉरी, Cl के नीचे क्या आना चाहिए? HCl. Cl के नीचे क्या आना चाहिए? HCl. Tell me, this is a perfectly crystalline compound, true or false? This is a perfectly crystalline compound, true or false? Yep, this is false. ठीक है. Yep, this is false. Why? Because guys, if you'll notice, this is imperfection. दिख रहा है क्या? देखो, HCl आना चाहिए था, बट Cl और Cl आमने सामने आ गए. Cl और Cl नीचे नीचे आ गए. H और H नीचे नीचे आ गए. H और H आमने सामने आ गए. So this is a inborn disorder. This is a inborn defect. कुछ समझ में आ रहा है? Now guys, tell me this compound is what will happen in H2. अरे यार, उतना क्यों कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने, हम लोगों को जस्ट थोड़ा सा थियोरेटिकल पढ़ना ही है. ठीक है. तो गाइस, this is imperfect crystal. Imperfect crystal. Okay. So at 0 Kelvin, इसकी रैंडमनेस 0 होगी. ट्रू और फॉल्स? ऐसे कैसे हो गया? अरे सी, नेचर में जब कोई चीज बनती है तो नेचर हमेशा उसको परफेक्ट बना. ऐसे है कि तुम लोगों ने कभी ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, रेड डायमंड ऐसे कुछ नाम सुने? नहीं सुना है? अरे ओके. ब्लू डायमंड इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट डायमंड इन नेचर. ठीक है, या फिर जो अवेलेबल है. ठीक है. एंड ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, नहीं, सफायर एंड ऑल दोस थिंग्स आर डिफरेंट. ठीक है. डायमंड्स की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है. तो ब्लू डायमंड तो सबसे 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 कॉस्टलीस्ट ब्लैक ये रहते हैं, डायमंड्स रहते हैं. ब्लैक डायमंड्स आर मैनमेड डायमंड्स एक्चुअली. ठीक है. एंड ऑल दोस थिंग्स आर
एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है। एक्चुअली डिफेक्ट रहने की वजह से उनके अंदर ये कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो गाइस उनके अंदर एक्चुअली कलर्स रहते हैं एंड दोज कलर्स आर बिकॉज ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है, इम्प्योरिटी की वजह से वो आ जाते हैं। बट एनीहू, तो नेचर में कोई भी चीज बनती है तो वो परफेक्ट कभी नहीं रहती, इट माइट हैव सम इम्परफेक्शन, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ दोज एग्जांपल। सो अब इसमें इनबॉर्न अगर डिफेक्ट है, मतलब इसमें इनबॉर्न इन एंट्रोपी है, डिसऑर्डर है, तो मुझे बताओ 0 केल्विन पे इसकी एंट्रोपी 0 होगी क्या? ऑब्वियसली नहीं, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहे हैं? या इवन वी आर नॉट परफेक्ट, नहीं तो हम लोगों को कभी कैंसर होता ही नहीं। ओके, सो समझ में आ रहा है गाइस, इसमें इनबॉर्न एंट्रोपी है, इनमें इसमें इनबॉर्न डिसऑर्डर है, तो 0 केल्विन पे भी इसका डिसऑर्डर हटने नहीं वाला है। एंड दिस इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एंट्रोपी, बची खुची एंट्रोपी, रेसिडुअल एंट्रोपी। समझ में आ रहा है? हाँ, ये एक्चुअली एंट्रोपी हमेशा रहने ही वाली है, ठीक है। तो बट इसे थर्ड लॉ को अगर मैथमेटिकली हम लोग लिखने गए, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो कैसे लिखेंगे? व्हेन लिमिट of temperature is tending towards zero. When temperature is tending towards zero, value of entropy is equals to 0. स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? तो स्टेटमेंट बोल रहा है ओनली फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। स्टेटमेंट में भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। तो हाँ, मैथमेटिकल मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी, इग्नोर इट। तो व्हेन लिमिट टेम्परेचर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, वैल्यू ऑफ एंट्रोपी विल बिकम इक्वल्स टू 0, ठीक है। टेम्परेचर टेंडिंग टुवर्ड्स 0 क्यों? बिकॉज हम लोग एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे कभी पहुंच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर टेंडिंग टुवर्ड्स 0 मींस टेम्परेचर इज 0.0001 केल्विन, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 0, गेटिंग इट? तो एट दैट टाइम एंट्रोपी विल बी इक्वल टू 0 व्हेन टेम्परेचर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। ये ऑलमोस्ट 0 हो गया है, दिस इज द मीनिंग। ये नीट स्टूडेंट्स के लिए था, कुछ लोगों को लिमिट कैसे रीड करते पता नहीं होगा, तो याद रखना। लिमिट मतलब उसकी लिमिट रीच हो रही है। अभी मतलब मैं मैथमेटिकली तो तुम लोगों को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट टेम्परेचर की जो लिमिट है 0 केल्विन की, वी आर रीचिंग टूवर्ड्स इट, ठीक है। दिस एरो मीन्स इट इज रीचिंग टूवर्ड्स इट, तो इट मीन्स इट्स वैल्यू इज 0.0001 ऐसे, बिकॉज हम लोग एग्जैक्टली 0 नहीं लिख सकते, एग्जैक्टली वो 0 कभी हो नहीं सकता। सो वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल्स टू 0 व्हेन टेम्परेचर इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ठीक है। ओके, तो या इट इज ऑलमोस्ट 0, मतलब लिमिट हम लोग जब ऐड करते तो वैल्यू ऑलमोस्ट 0 ही रहती है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े, हो गया ये। नाउ गाइस, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये करके मजा क्या आया? तो गाइस, प्लॉट का एप्लीकेशन, थर्ड लॉ ऑफ थर्मो, ये सब तुम लोगों को सिर्फ थियरी याद रखनी है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल फ्रेम नहीं होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अभी तक हम लोगों ने जब कभी कोई भी फंक्शन लिखा था एंट्रोपी को छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, तो मुझे बताओ मैंने एग्जैक्ट वैल्यू कभी ऐसे लिखा था क्या? U इज इक्वल्स टू 0 और एल्स H इज इक्वल्स टू 0? हम लोग इंटरनल एनर्जी या फिर एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। हम लोग हर एक के डेल्टा लिख रहे थे, डेल्टा U इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा H इज इक्वल्स टू 0, चेंज निकाल रहे थे, वेरी नाइस। और तभी मैंने लिख के भी दिया था एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी कैन नॉट बी फाउंड, याद है? तो गाइस सिमिलरली एंट्रोपी का ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है? तो बाय यूजिंग प्लॉट, by using plot, third law of thermodynamics, we can find we can find absolute value, absolute value of entropy। समझ में आ रहा है? we can find absolute value of entropy, and कैसे? तो देखो, again this is all in theory, ठीक है। तो मेरे पास एक कंपाउंड है,
जिसके एंट्रोपी मतलब जिसका टेम्परेचर मैंने रख दिया है 0 केल्विन, इतना तो 0 केल्विन। अब कंपाउंड 0 केल्विन पे है तो मुझे उसकी एंट्रोपी पता है, मुझे बताओ एंट्रोपी एट 0 केल्विन कितनी रहेगी इसकी, 0। अब मैंने इसको कुछ हीट प्रोवाइड की, इसको मैंने कुछ हीट प्रोवाइड की। अब जितनी हीट प्रोवाइड की मुझे पता है मैंने इसको कितनी हीट प्रोवाइड की है, ठीक है, रिवर्सिबली मैंने कुछ हीट प्रोवाइड की एंड इसका टेम्परेचर कुछ इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। तो अब जो नया कंपाउंड आया, जो नया कंपाउंड आया उसके केस में मुझे पता है इसका टेम्परेचर अभी टी केल्विन पे पहुंचा एंड इसकी एंट्रोपी एट टी केल्विन वो मुझे निकालनी है। बट 0 से टी केल्विन तक पहुंचते पहुंचते जो एंट्रोपी चेंज आया वो मैंने कैलकुलेट किया। लेट्स अज्यूम चेंज इन एंट्रोपी ओवर हियर इज एक्स, हम लोग चेंज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। मैंने जितनी हीट प्रोवाइड की उसे मैं टेम्परेचर से डिवाइड कर दूंगा एंड आई विल गेट डेल्टा एस। हम लोगों को फॉर्मूला ऊपर पता ही है, आर यू गेटिंग इट? ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। नाउ ओवर हियर व्हाट विल हैपन देन, बताओ। मैंने डेल्टा एस निकाला, अगेन ये सिर्फ थियरी में याद रखना है। हाँ, डेल्टा एस के लिए और एक फॉर्मूला रहता है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल टेम्परेचर इज टी माइनस इनिशियल इज 0, डेल्टा एस की वैल्यू आ गई है एक्स विच इज इक्वल्स टू एस टी माइनस इनिशियल क्या था 0, तो वी कैन गेट दैट एस टी इज इक्वल्स टू एक्स जूल पर केल्विन, एंट्रोपी का यूनिट जूल पर केल्विन। आर यू गेटिंग इट? बस इतना ही है, ये समझ में आया? एंट्रोपी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस इज डिफरेंट, ठीक है। एक्चुअली तुम लोगों को ये वैल्यूज एग्जाम में पहले से दी रहती है, ये सब सिर्फ थियरी में हम लोगों को याद रखना है कि क्लॉट का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तुम लोगों को विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये सब पूछा जा सकता है। अगेन स्टेटमेंट के ऊपर और इतना इन डेप्थ थियरी का जो क्वेश्चन रहता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एडवांस के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। एडवांस में ये सब पूछा जाता है थियोरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो एंड वो भी एमएसक्यू रहते हैं वहाँ पे, तो एमएसक्यू में ही ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थियरी जो है वो यूजुअली एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू ही इंपॉर्टेंट रहती है, ओके। तो दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तुम लोगों को होपफुली इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। तो गाइज चलो कंप्लीट दिस फास्ट। व्हाट इज एमएसक्यू? एमएसक्यू इज मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, पता होगा तुम लोगों को। मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन में तुम लोगों को अगेन 4 ऑप्शन रहते हैं, ए बी सी एंड डी, ऐसे 4 ऑप्शन रहते हैं एंड इसमें से एक से ज्यादा आंसर करेक्ट रहते हैं। जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन जिसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम यहाँ पे बी एंड सी आंसर करेक्ट है, तो तुम लोगों को एग्जाम में बी और सी दोनों टिक करके आना है। अगर तुम लोग सिर्फ बी करेक्ट टिक करके आओगे रॉन्ग, अगर तुम लोग सिर्फ सी टिक करके आओगे रॉन्ग, अगर तुम लोग ए बी टिक करके आओगे रॉन्ग, अगर तुम लोग बी सी डी टिक करके आओगे रॉन्ग। समझ में आ रहा है? तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बी और सी इतना ही टिक करके आना है, रेस्ट ऑल कॉम्बिनेशंस आर रॉन्ग। एंड अगर तुम लोगों का आंसर करेक्ट आया तो +4, अगर तुम लोगों का आंसर रॉन्ग आया तो 0। यहाँ पे माइनस मार्क्स नहीं रहते। तो एमएसक्यू का एक एडवांटेज ये रहता है कि अगर भले ही तुम लोगों को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, एटलीस्ट तुम लोग कुछ तो लिख के आ सकते हो। अगर नसीब अच्छा हुआ तो तुम लोगों को करेक्ट आंसर मार्क्स मिल जाएंगे। -2 नहीं होते इसमें, एमएसक्यू में मार्क्स डायरेक्ट 0 हो जाता है, -2 नहीं होता यहाँ पे। तुम लोगों के एफएलटी में कभी कभार मार्किंग स्कीम थोड़ी अलग रह सकती है। एमएसक्यू सिर्फ एडवांस में आता है, एमएसक्यू सिर्फ एडवांस में आते हैं, ठीक है, बाकी किसी भी जगह पे नहीं पूछे जाते। ओके सो गाइस आगे कंटिन्यू करें। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट तो
Now guys, we are starting with Gibbs free energy. Gibbs free energy. Gibbs free energy is represented by G. Okay? And it is used to predict spontaneity of the reaction. And what is this? So this is the useful energy. This is the useful energy available to system. इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे, डोंट वरी. ठीक है. सो नाउ गाइस, इन केस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, इसका फॉर्मूला हम लोग इसके डेरिवेशन करेंगे बाद में, बट पहले इसका फॉर्मूला लिख दो. G is equals to H minus Ts. ठीक है. This is its formula. Now you guys tell me over here H, can we find absolute value of H? In case of this formula, can we find absolute value of H? H की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते. तो हम लोग absolute value of G निकाल पाएंगे कभी? तो we can't find absolute value of G. ठीक है. Theoretically speaking, we can't find it. ठीक है. So we can always find delta G. अब delta G के लिए याद रखो गिब्स कहाँ पे यूज होता है. इसका यूज सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर, याद रखना, ओनली फॉर केमिकल रिएक्शन. इसका यूज हम लोग फेस चेंज के लिए यूज कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि हम लोगों को केमिकल रिएक्शन के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखने वाले हैं, तो इट इज ओनली यूज्ड फॉर केमिकल रिएक्शंस. अब मुझे बताओ, केमिकल रिएक्शंस के लिए अगर हम लोग ये यूज कर रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन की कंडीशन क्या रहती है? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. वेरी नाइस. याद रखो, ये बार बार मैं रिपीट कर करके तुम लोगों को याद दिला रहा हूँ, और कुछ नहीं. ठीक है. सो गाइस, डेल्टा जी चेंज अगर मुझे निकालना है, तो इट विल बिकम डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस. बट सिंस रिएक्शन इज अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, so we'll say that delta G is equals to delta H minus T बाहर आ जाएगा, T delta S. Getting it? This is the formula. Remember this. H is enthalpy. This is the last lecture, and if you are asking me if H is Planck's constant or what, so it's better you stop studying thermodynamics. Okay? Because फर्स्ट लेक्चर से हम लोग ये कर रहे हैं, या फिर एंथैल्पी हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत बार किया है. तो प्लैंक्स कांस्टेंट कहा, which is small h, and capital H enthalpy कहा. ओके. तो नाउ गाइस, इसका यूज एंड ये हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर इसका सिग्निफिकेंस. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस, डेल्टा जी tells us about यूजफुल एनर्जी या फिर यूजफुल वर्क डन. ठीक है. इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, W यूजफुल. तो अगर इसको इंटरप्रेट करने जाए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. एंड अगर तुम लोगों को याद होगा, तो ये जो रहती है डेल्टा एच क्या रहता है? देखो, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया, दिस इज यूजफुल एनर्जी या फिर यूजफुल वर्क डन. डेल्टा एच क्या रहता है? डेल्टा एच क्या रहता है? क्यों? नहीं नहीं, डेल्टा एच का फिजिकल सिग्निफिकेंस, मैंने हर एक चीज का तुम लोगों को फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया है. डेल्टा एच इज एंथैल्पी, बट व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस? इट इज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. याद रखो, दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो व्हाट इज टी डेल्टा एस? व्हाट इज टी डेल्टा एस? तो टोटल एनर्जी में से जो एनर्जी हम लोग यूज नहीं कर सकते, अगर मैं वो माइनस कर दूं, तो मुझे यूजफुल एनर्जी मिलेगी. समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग इट? अगर मैं टोटल एनर्जी में से नॉन यूजफुल एनर्जी माइनस कर दूं, यूजलेस एनर्जी, करेक्ट बोल रहे हो, तब जाके मुझे यूजफुल एनर्जी मिलेगी, यूजफुल वर्क डन मिलेगा. तो दिस इज एनर्जी which is not available
for work done. Okay, so what do we mean by this? अब ये exactly है क्या? तो देखो, इसको अगर मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक सिंपल एग्जांपल, ठीक है, सिंपल कोरिलेशन, ठीक है, नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल, नॉट अ एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, बट अ सिंपल एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है. नाउ गाइस, ये हमारे एक्चुअली एक सर ने एक बार बोला था, ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थॉट ही इज टॉकिंग समथिंग टोटली यूजलेस, ठीक है, बट देन ही एक्सप्लेन हिमसेल्फ, ठीक है. तो व्हाट ही सेड फर्स्ट, तो एक दिन हमारे सर, फिजिक्स के सर थे, वो बोले कि राइट नाउ आई हैव सो मच एनर्जी, मेरे पास इतनी ज्यादा एनर्जी है दैट आई कैन डिस्ट्रॉय अ होल, तो आई कैन डिस्ट्रॉय अ होल सिटी और इज अ होल कंट्री, ठीक है. अगेन उनका स्टेटमेंट ये था कि इस मतलब मेरे पास इतनी ज्यादा एनर्जी है दैट आई कैन डिस्ट्रॉय अ होल सिटी और इज अ होल कंट्री. एंड हाँ, एंड आई वाज लाइक कुछ भी, ड्रैगन बॉल जी का शो तो नहीं चल रहे, ठीक है, तो जिन लोगों ने कार्टून देखा होगा पता होगा. तो अब ऐसे कैसे, हाँ, तो हाउ, तो देन ही एक्सप्लेन्ड इट बाय यूजिंग आइंस्टाइन्स फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ठीक है. तो गाइस, हाँ, एटॉमिक एनर्जी, करेक्ट बोल रहे हो. तो गाइस, इफ विल कंसीडर दिस फॉर्मूला, ये तुम लोगों ने पहले भी देखा होगा, तो हमारे सर का मास अज्यूम कर देते 60 kg था, and c is velocity of light, which is c 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. तो 60 into 3 का स्क्वायर 9, 10 raised to 8 का स्क्वायर 10 raised to 16, and which will become 540 into 10 raised to 16 kilojoule. And believe me, this much energy is sufficient to destroy a whole country. आराम से एक कंट्री तो इसमें डिस्ट्रॉय आराम से हो जाएगी, ठीक है. तो yep, this is too much of energy. But see, even now some of you might weigh 60 kgs. 60 नहीं तो 50 kg तो आराम से रहेगा. Yeah, this is really enough, ठीक है. So guys, even though it is enough, can we generate this much of energy? अगर इतनी एनर्जी है, अगर एक्चुअल में जनरेट होने लग गई, तो हम लोगों को एनर्जी की जरूरत कभी पड़े ही ना, मतलब हम लोगों को एक्स्ट्रा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जरूरत पड़े ही ना, ठीक है. तो व्हाट इज सी, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है. तो व्हाट डू यू थिंक गाइस, इज इट पॉसिबल टू जनरेट दिस मच ऑफ एनर्जी? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है. तो दिस इज द टोटल एनर्जी. अरे कुछ समझ में आ रहा है? दिस इज द टोटल एनर्जी, बट कैन वी यूटिलाइज कंप्लीट एनर्जी फ्रॉम दिस? नहीं, हम लोग बहुत ही मिनिमल फ्रैक्शन यूज करते हैं ना. हम लोग कभी ये पूरी एनर्जी यूटिलाइज करते हैं क्या? कभी भी नहीं. हम लोग इसका एकदम छोटू सा फ्रैक्शन यूज करते हैं हमेशा डे टू लाइफ में. आर यू गेटिंग इट? तो टोटल एनर्जी जो है वो कभी यूज होने वाली है क्या? बिल्कुल नहीं. हम लोग उसमें का एक छोटा सा फ्रैक्शन यूज करते हैं, विच इज गिब्स फ्री एनर्जी. क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट एक हल्का फुल्का समझ में आ गया कि हम लोगों के पास जो टोटल एनर्जी है वो हम लोग कभी भी यूज नहीं कर पाते. टोटल एंथैल्पी हम लोगों की कभी यूज नहीं होती. वी यूज अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट. वेयर इज द अदर रिमेनिंग एनर्जी? कुछ नहीं, वो हमारे बॉडी के अंदर ही रहती है. व्हेन वी डाई वी डिकम्पोज इट, मतलब वी आइदर वी बर्न इट और एल्स वी जस्ट बरी इट, सो इट गेट्स डिकम्पोज्ड ऑफ, वापस नेचर में चली जाती है. ओके, सो चलो आगे बढ़े. तो तुम लोगों को गिब्स फ्री एनर्जी का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट्स डेरिवेशन. नाउ रिमेंबर दिस, गिब्स फ्री एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी थी? बिकॉज हम लोगों का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों को कुछ हेल्प नहीं कर रहा था. S total is equals to S of system plus S of surrounding. Guys, remember this. Whenever surrounding is there, I'll write system. जब कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, this is applicable for system. ये इतना पता है ना? Because even at that time complete mass energy में कन्वर्ट नहीं होता. याद रखो, हम लोग किसी भी चीज को जब कंबस्ट करते हैं तो पूरा का पूरा मास एनर्जी में कभी कन्वर्ट नहीं होता. हम लोगों का बहुत सारा मास ऐश के फॉर्म में रह जाता है, ठीक है. ऐश नाम की चीज बचती है ना अंदर पीछे, राख. तो राख में
भी एनर्जी रहती है उतनी, बस वी कांट कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी, ठीक है। एनर्जी हम लोग हमेशा, सॉरी मास हम लोग पूरी तरह से एनर्जी में कभी कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ लिमिटेशन, दैट इज अ बिग लिमिटेशन। ओके, सो गाइस ओवर हियर सराउंडिंग में हम लोगों को कुछ इंटरेस्ट था क्या? बिल्कुल नहीं। सो सराउंडिंग हम लोगों को निकालने में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग वी केम अप विद गिब्स फ्री एनर्जी। अब वो कैसे हम लोगों ने किया, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं लोगों को सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो। नाउ ओवर हियर वी आर गोइंग टू कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कौन सी, तुम लोगों ने अगर डिस्कवरी चैनल देखा होगा तो ये बहुत सी बार डिस्कवरी चैनल पे आता है, ठीक है। तो देयर इज अ बलून, एंड उस बलून के पीछे बाजू में वो ऐसे जलती हुए तीली लेके जाते हैं, कभी देखा ही है। एंड फिर वो बलून डायरेक्ट फट जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। हैव यू सीन इट? इट एक्सप्लोड्स वायलेंटली। देखा है कभी ये? एकदम स्लो मोशन में दिखाते हैं वो। अब मुझे बताओ गाइस, बलून ऐसे एक्सप्लोड कैसे हो गया? बिकॉज ओवर हियर दे हैव मिक्स्ड हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों की रिएक्शन हुई थी, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ये दोनों कंबस्ट होते हैं टू गिव अस 2H2O गैस, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो गाइस दिस इज आवर यूनिवर्स। हमारा बलून जो है वो हम लोगों का सिस्टम है। अब एक्सप्लोजन हुआ मींस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो मुझे बताओ यहाँ पे हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम पॉजिटिव या नेगेटिव? हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम इज पॉजिटिव या नेगेटिव? हीट रिलीज हुई ना यार, हीट रिलीज कर रहे हैं हम लोग, हीट उसकी कम हो गई तो इट इज नेगेटिव, बिकॉज एक्सप्लोजन हुआ। अरे समझ में आ रहा है? सिस्टम ने एक्सप्लोड होने के बाद बहुत सारी हीट बाहर रिलीज कर दी, उसने हीट बाहर रिलीज की, तो हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम इज नेगेटिव। अब मुझे बताओ, सिस्टम ने जो हीट रिलीज की वो हीट किसने एब्जॉर्ब की? सिस्टम ने जो हीट रिलीज की वो हीट एब्जॉर्ब किसने की? ऑब्वियसली सराउंडिंग ने की। तो गाइस दिस वैल्यू, दिस नेगेटिव वैल्यू, कैन आई अज्यूम इट टू बी -x? इसे मैं -x अज्यूम कर लूं तो हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम इज एब्जॉर्ब्ड बाय सराउंडिंग, तो इट इज +x। सिस्टम ने -x रिलीज की तो सराउंडिंग ने +x एब्जॉर्ब की। एनी डाउट? गाइस तुम लोगों को क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है दैट इज टोटली अप टू यू, ठीक है। ये लिखोगे तो अच्छा ही है। ओके, ये समझ में आ रहा है? दिस इज द फोर्थ स्टेप इन आवर डेरिवेशन, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या था? हम लोगों को यार ये सराउंडिंग जो है, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो वो हम लोगों को निकालना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ केमिकल रिएक्शन एंड दिस केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर entropy of surrounding is nothing but heat released by surrounding upon temperature, and heat released by surrounding, heat released by surrounding is nothing but, देखो heat released by surrounding is nothing but minus of heat released by system। ये फॉलो हो रहा है क्या? देखो अगर ये +x था तो सिस्टम -x है, तो Q सराउंडिंग इज माइनस ऑफ Q सिस्टम, राइट? तो can I write down delta S of surrounding is minus of Q of system upon temperature? And guys, since we know that over here pressure is constant, so at constant pressure heat exchange is nothing but enthalpy. देखो
एंड पूछो कुछ डाउट होगा तो. एट कांस्टेंट प्रेशर heat released is nothing but enthalpy, because this is for a chemical reaction, and chemical reaction occurs at constant temperature and pressure. Any doubt? Now guys, if we'll put delta s, value of delta s in this above equation, okay, so what will happen? So we'll get delta s total, this is derivation for Gibbs free energy, is equals to delta s of system minus delta h of system on temperature. अब मुझे बताओ इस पूरे एक्सप्रेशन में, पहले ऊपर देखो, पहले सराउंडिंग प्रेजेंट थी, बट अभी इस एक्सप्रेशन में सराउंडिंग प्रेजेंट है क्या? टेल मी. हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. पहले सराउंडिंग प्रेजेंट थी, बट नाउ ओनली सिस्टम इज देयर. गेटिंग इट? ये प्लस क्यों होगा? सी दिस वाज प्लस, दिस वाज प्लस, तो ओके हाँ, तो ये प्लस एंड डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज माइनस ना. गेटिंग इट? पहले फॉर्मूला प्लस था, बट डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम, तो हम लोग ओवरऑल इसको माइनस लिख दे तो चलेगा ना. प्लस माइनस माइनस. नाउ गाइस, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस टी. तो माइनस टी से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट आई विल गेट? माइनस टी डेल्टा एस ऑफ टोटल इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस. मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, जब कुछ भी लिखा नहीं होगा तो दैट इज फॉर सिस्टम. तो अभी मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ क्या? दैट आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग, सो इट मींस इट इज फॉर सिस्टम. माइनस माइनस टी, तो माइनस माइनस प्लस टी हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ सिस्टम. तो अगेन मुझे सिस्टम के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. अपॉन टी, तो टी टी कैंसल आउट हो गया. एंड व्हाट एक्सप्रेशन आई विल गेट? माइनस टी डेल्टा एस टोटल is equals to delta H minus T delta S. And guys, this is how Gibbs removed entropy of surrounding from this expression. समझ में आ रहा है? गिब्स ने क्या चेंज किया? तो गिब्स ने एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग पूरी तरह से इस एक्सप्रेशन में से निकाल दिया. एंड ये इतना करने के बाद देन ऑब्वियसली उनको उनका नाम ऐड करना है, तो ही अज्यूम्ड अ न्यू फंक्शन. ठीक है, assuming he assumed a new function delta G, Gibbs free energy, which he assumed to be equal to minus T delta S total. समझा? So guys, this is how he derived it, that delta G is equals to delta H minus T delta S. And now this parameter doesn't contain anything related to surrounding. यहाँ पे सराउंडिंग के रिलेटेड कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. Getting it? So guys, this is a part of second law of thermodynamics. Spontaneity पूरी तरह से सेकंड लॉ में आता है. ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने सिर्फ एनर्जी का ट्रांजैक्शन देखा. सेकंड लॉ में कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सी नहीं है, वो देखा. ठीक है, सो गाइस, नाउ वी ऑल नो दैट डेल्टा एस ऑफ टोटल, इफ इट इज पॉजिटिव, रिएक्शन क्या थी? डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन वाज स्पॉन्टेनियस. तो गाइस मुझे बताओ, अब डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या होगा? माइनस ऑफ डेल्टा एस. तो माइनस ऑफ प्लस इज माइनस, करेक्ट बोल रहे हो. तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव. रिमेंबर दिस, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, एंड दिस इज अ बेटर पैरामीटर. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, इसको लिख के रखना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ गाइस, सिमिलरली व्हेन डेल्टा एस टोटल is equals to 0, reaction is at equilibrium. Reaction is at equilibrium. So now you tell me,
डेल्टा एस टोटल अगर 0 हो गया तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई गेस डेल्टा जी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। परफेक्ट। एंड गाइस फाइनली अभी तुम लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा, डेल्टा एस टोटल इफ इट इज लेस देन 0 ये नेगेटिव हो जाएगा, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस थी। नाउ गाइस ये अगर नेगेटिव हो गया तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो डेल्टा जी विल बिकम प्लस। ठीक है, चलो कंप्लीट दिस फास्ट। एंड गिब्स फ्री एनर्जी इज अ मोर रिलायबल फंक्शन विच वी कैन यूज, ठीक है, कंपेयर टू एंट्रोपी, एंड इट इज वेरी मच इजी टू यूज। इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। बस तुम लोगों को किसी भी केमिस्ट्री के डेरिवेशन को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखना है। बाय द वे दिस पार्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। अब ये तुम लोगों को फॉर्मूलाज याद रखोगे तो याद हो ही जाएगा, बट स्टिल डेल्टा जी इज माइनस टी डेल्टा एस टोटल, रिमेंबर दिस। एंड मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तुम लोगों को आइडिया आ जाएगी which things are important, which things are not. By the way, Gibbs free energy and thermochemistry, they are the most important part of thermodynamics, ठीक है, from chemistry section. Why? Because in physics you don't have thermochemistry and you don't have Gibbs free energy. ये दो चीजें तुम लोगों को फिजिक्स में नहीं पढ़ाई जाती, या फिर फिजिक्स में ये नहीं है, तो hence these are the most important parameters. गिब्स फ्री एनर्जी तुम लोगों को फिजिक्स में कहाँ पे है? गिब्स फ्री एनर्जी तुम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया है? नहीं है ना पक्का? बिकॉज सम पीपल आर सेइंग कि था। नहीं है, हाँ वही मैं सोचूं ऐसे कैसे आ गया। हाँ तुम लोगों को एमसीक्यूज में आया होगा, भरोसा नहीं, ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है गलती से, बट थियरी में तुम लोगों को शायद से पढ़ाया नहीं जाता। फिजिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी नहीं है, तुम लोगों को थियरी में पढ़ाया नहीं होगा। मत बोलो, मुझे पता है फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में क्या सिलेबस है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत पता है, पूरा नहीं, बट स्टिल। वहाँ पे तुम लोगों को कैरोट साइकिल एंड ऑल बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। बाकी में पॉइसन्स इक्वेशन, उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन, किसकी वैल्यू ज्यादा किसकी वैल्यू कम, एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, बट ये नहीं आता। नेक्स्ट, तो गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। मैं तुम लोगों को पहले थोड़े से फॉर्मूलाज डिराइव करके दे देता हूँ, ठीक है, फॉर्मूलाज हम लोग सिर्फ लिख भी दे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, बट थोड़ी बहुत डेरिवेशन पता होना कुछ बुरी बात नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे टी इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। अब यहाँ पे गाइस हम लोग ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर टी इक्विलिब्रियम हम लोग बोलने वाले हैं,
एंड इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाता है, डेल्टा जी 0। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, ऐसी पोजीशन जहां पे रिएक्शन आगे भी नहीं बढ़ रही है और पीछे भी नहीं आ रही है, ठीक है। सो गाइस, डेल्टा जी अगर 0 हो जाए तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब ये अगर 0 हो गया एट इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा एच माइनस टी इक्विलिब्रियम डेल्टा एस। अब टी इक्विलिब्रियम को दूसरी तरफ लेके जाओ, तो टी इक्विलिब्रियम डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, एंड देन टी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। बेशक this is our next formula. Now what is the exact meaning of equilibrium and उसका डेल्टा जी के साथ रिलेशन क्या रहता है? तो नेक्स्ट इज relationship between delta G naught, Q and K, ठीक है। नाउ व्हाट इज Q K, ये सब हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। तो तुम लोगों को एक यहाँ पे सिंपल इक्वेशन याद रखनी है जिसकी डेरिवेशन हम लोगों के सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन इज डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln of Q। Now what is exactly Q? तो Q is defined for इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है। तो मैं जरा यहाँ पे टर्म्स लिख देता हूँ पहले। तो गाइस, डेल्टा जी इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये तो पता है तुम लोगों को, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट, नॉट हम लोग कब यूज करते हैं, नॉट हम लोग कब यूज करते हैं बताओ? तो नॉट हम लोग यूज करेंगे फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो नाउ गाइस, यहाँ पे चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अब Q, अरे K कहाँ पे आ जाएगा, डोंट वरी। अब Q is reaction quotient and K is equilibrium constant. Now guys, remember this, equilibrium exists for reversible reaction, equilibrium exists for reversible reaction। ये मैं थोड़ा सा तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसको कैसे लिखते हैं और वो भी बता दूंगा। Now guys, let's assume we are carrying out a reaction. Over here reaction is 0% complete and over here reaction is 100% complete. अब मुझे बताओ, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी 100% कंप्लीट हो सकती है क्या? तुम लोग खुद सोचो एंड मुझे आंसर देना। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी 100% कंप्लीट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। परफेक्ट। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज गाइस देखो, अगर कोई एक रिएक्शन रिवर्सिबल है तो वो ऐसे फॉरवर्ड में जाएगी, फिर से थोड़ा रिवर्स में आएगी, फिर थोड़ा फॉरवर्ड में जाएगी, फिर थोड़ा रिवर्स में आएगी, फिर थोड़ा फॉरवर्ड में जाएगी, फिर से थोड़ा रिवर्स में आएगी। अगेन इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, थोड़ा फॉरवर्ड थोड़ा रिवर्स, थोड़ा फॉरवर्ड थोड़ा रिवर्स, थोड़ा फॉरवर्ड थोड़ा रिवर्स। अब धीरे धीरे उसकी फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी बहुत कम होते जा रही है एंड रिवर्स में आने की टेंडेंसी बढ़ते जा रही है, एंड इट विल कीप ऑन कमिंग बैक टू अ कांस्टेंट पॉइंट। मतलब वो हमेशा इधर ही रहना पसंद करेगी, एंड इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आ रहा है? रिवर्सिबल रिएक्शन, थोड़ा फॉरवर्ड अगेन बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड, मतलब ठीक है। ये हम लोग इक्विलिब्रियम में और ज्यादा आराम से स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए हम लोगों को इतना ही समझना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को एक पॉइंट बहुत पसंद आता है जहां पे वो बार बार आती है एंड एक पॉइंट के बाद वहां पे आके रुक जाती है। करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये एकदम रफ डेफिनेशन है, ठीक है, बट तुम लोगों को इक्विलिब्रियम पोजीशन समझ में आ रही है। अब इधर आने के बाद वो क्या कर रही है, वो थोड़ा फॉरवर्ड में जा रही है, वापस बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, मतलब इस पॉइंट के अराउंड ऐसे घूमते जा रही है, थोड़ा आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन एग्जिस्ट एनीवेयर, वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेट्स अज्यूम दिस इज इक्विलिब्रियम, लेट्स अज्यूम दिस इज इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे हम लोग डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ हाउ टू डिफाइन अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट?
तो let's assume we have a reversible reaction A moles of A plus B moles of B. Reversible arrow है, giving us C moles of C plus D moles of D. Now guys, equilibrium constant is ratio of concentration of product. याद रखो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना, तुम लोगों ने पहले भी ड्रॉ किया होगा होपफुली. स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग हमेशा कॉन्सेंट्रेशन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं. तो रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. एससी मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो अगर इस इक्वेशन के लिए मुझे के की वैल्यू लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो पहला प्रोडक्ट है हम लोगों का सी, रेज टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज स्मॉल सी, मल्टीप्लाइड बाय concentration of D multiplied by stoichiometric coefficient which is small d upon concentration of reactant which is A raised to small a into B raised to small b. Equilibrium constant कैसे लिखते हैं समझ में आ रहा है? Now remember this, K is defined only at equilibrium. K is defined only at equilibrium. ठीक है. बाय द वे ये पहला वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना. मैं तुम लोगों को लिखने के लिए थोड़ा टाइम दे दूंगा, डोंट वरी गाइस. मतलब इक्विलिब्रियम पे ही के डिफाइन होता है. तो ये बाकी देखो समझ लो, ये इक्विलिब्रियम हम लोगों का ऑलमोस्ट 65% पे है. तो इक्विलिब्रियम तो 65% पे डिफाइन हो रहा है. बट अगर मैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो 10% पे ले लूं तो उसे मैं क्या बोलूंगा? या फिर मैं उसे 20% पे ले लूं तो उसे मैं क्या बोलूंगा? और एल्स आई एम टेकिंग इट टू 75%, देन व्हाट आई विल कॉल इट? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट will be called as reaction quotient if it is not at equilibrium. Q. समझ में आ रहा है? So Q is defined at anywhere else या फिर at any point throughout the reaction and equilibrium constant is only defined at equilibrium. तो Q is also ratio of product upon reactant raised to stoichiometric coefficient. तो Q का फॉर्मूला भी सेम आएगा. Q is nothing but concentration of C raised to C, concentration of D raised to D, concentration of A raised to A, concentration of B raised to B. But हाँ करेक्ट बोल रहे हो पार. तो Q can be defined at any point. ठीक है, can be defined at any point, can be defined at any point. अब तो Q का यूज क्या है? तो देखो लेट्स अज्यूम आई हैव डिफाइंड Q ओवर हियर समवेयर. अब मुझे बताओ Q की वैल्यू K से बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? तो ऑब्वियसली तुम लोगों को ये देख के समझ में आ रहा होगा कि Q की वैल्यू K से बहुत कम है. तो अब Q किसकी तरफ भागेगा? Q K की तरफ भागेगा. अब अगर Q K की तरफ भाग रहा है मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रही है? रिएक्शन 0 से आगे की तरफ बढ़ रही है, मतलब इट इज गोइंग इन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन? इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. वेरी नाइस. तो अगर Q की वैल्यू K से कम होगी तो रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. बट अगर Q ये K से ज्यादा है, मतलब Q अभी के लिए 80% पे समझ लो, तो रिएक्शन अभी कौन से डायरेक्शन में जाएगी? एक ही डायरेक्शन में जाएगी. एंड यहाँ पे वो कहाँ पे जा रहा है? बैकवर्ड में जा रहा है. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. इट इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ये सारी चीजें इक्विलिब्रियम की है. इक्विलिब्रियम में मैं ये और प्यार से बताऊंगा, आराम से बताऊंगा. ठीक है, नहीं तो शायद तभी पढ़ाते वक्त बोल दूंगा कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया. तो ये ऐसे ही होता है, डिपेंड्स बट स्टिल. तो गाइज, एंड अगर Q एग्जैक्टली K के पोजीशन पे आ गया तो अब रिएक्शन कहाँ पे भागेगी? रिएक्शन आगे भी नहीं जाएगी, पीछे भी नहीं जाएगी, वो जिधर है उधर ही रुक जाएगी. आर यू गेटिंग इट? Yep, this is at equilibrium point. So guys, at equilibrium, remember this, delta G becomes 0 and Q becomes K. So हम लोगों का फॉर्मूला था delta G is equals to delta G naught plus RT ln of Q. And now at equilibrium, we'll state that this is equals to 0 and delta G naught plus RT ln of, अब Q के बदले हम लोग लिखेंगे K because it is at equilibrium. So we'll get delta G naught is equals to minus RT ln of K.
ये फॉर्मूला इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाकी चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट इट डाउन एंड ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। स्टिल वन मोर फॉर्मूला इज देयर एक्चुअली, बट वो मैं यहाँ पे डिराइव करके नहीं बताऊंगा, वो हम लोग इक्विलिब्रियम में डिराइव करेंगे। बट विद दिस ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कवर्ड। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस एक्चुअली। ठीक है, बट बिफोर दैट आई थिंक वी कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक। ले ले, पता है मुझे लगा ही था तुम लोग ब्रेक मांगोगे। तो ब्रेक टिल 8:05।
Yes, guys. So should we continue? Now, let's start with some questions. ठीक है? तो इस पे क्वेश्चन कौन सा टाइप के आ सकते हैं? तो they might give you one reaction. Question is for a reaction A giving us B. Doesn't matter whichever reaction it might be. ठीक है? Delta H is minus 430 kilojoule per mole, and delta S is minus 400 joule per Kelvin per mole. Find if the reaction is spontaneous at 27 degrees Celsius. चलो figure it out. बताओ. If the reaction is spontaneous at 27 degrees Celsius, कैसे निकालोगे? तो तुम लोगों को डेल्टा G कैलकुलेट करना है. If delta G is negative, then the reaction is spontaneous. If positive, then the reaction is non-spontaneous. चलो जल्दी करो. Find it. डेल्टा S याद रखो, दिस इज ऑफ सिस्टम. सिस्टम का डेल्टा S तुम लोगों को देके रखा है, तो इस पे से तुम लोग कभी भी सराउंडिंग की सराउंडिंग निकाल नहीं पाते. ठीक है? तो आ रहा है किसी का आंसर? नाउ गाइस, यू माइट मेक वन मिस्टेक ओवर हियर. धनंजय करेक्ट आंसर है. ठीक है? तो क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, मतलब आंसर कैसे आएगा. डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. दैट्स इट. अब डेल्टा H तुम लोगों को देखे रखा है कितना? तो -430. माइनस टेम्परेचर तुम लोगों को देखे रखा है 27. प्लीज उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना. मल्टीप्लाइड बाय, अब तुम लोगों की सबकी जो मिस्टेक हो रही है, ठीक है, कहाँ पे हो रही है? तो तुम लोग यहाँ पे एक वैल्यू किलो जूल की लिख रहे हो एंड दूसरी वैल्यू जूल्स की लिख रहे हो. दैट इज द मिस्टेक. समझ में आ रहा है? तो पहले इस किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करो, या फिर जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करो. तो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने जूल्स को किलो जूल में कन्वर्ट किया, -0.4 जूल पर केल्विन पर मोल. ठीक है? अब उसके बाद आंसर निकालना थोड़ा इजी है. -430, अब ये माइनस और अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा. 4 3 1200. ठीक है? तो 1200 होने के बदले ये 120 हो जाएगा, बिकॉज एक पॉइंट है. एंड आंसर विल बिकम -130 किलो जूल per mole. This is the value of delta G. And now since delta G is negative, this reaction is spontaneous. समझा इसमें? बहुत लोगों का आंसर करेक्ट था. निहारिका, चेतन, योर आंसर वाज करेक्ट. यहाँ, अरे यार तुम लोग छोटी छोटी चीजें पकड़ के बैठते हो. दिस इज इन किलो जूल. थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, और कुछ नहीं. ओके. तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन ले ऐसे टाइप का. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब गाइज, A giving us 2B. ठीक है? डेल्टा H over here is plus 50 kilojoule, and entropy over here is plus 400 joule per Kelvin. You need to find equilibrium temperature. चलो बताओ, what is the equilibrium temperature over here? मैसेज करना सब जन. What is the equilibrium temperature?
तो यह करेक्ट आंसर है। सिद्धार्थ करेक्ट आंसर है, उन्नति करेक्ट आंसर है, आनंद करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, अद्वैय करेक्ट आंसर है, धनंजय करेक्ट। ओके, सो गाइस, टी इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या है? टी इक्विलिब्रियम इज डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, बस इतना ही तो फॉर्मूला है। अब डेल्टा एच जो है वो 50 किलो जूल है। अब 1 किलो जूल 1 जूल नहीं चलता, तो अभी के लिए इसको मैं जूल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 50 का हो जाएगा 50,000 जूल। तो ये 50 के बदले मैं यहाँ पे 50,000 ऐड करूँ अपॉन 400, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। 4 1 4, 1 बच गया, मतलब 100 बच गए, तो 4 25 एंड दिस इज इन केल्विन, बिकॉज यूनिट देखो 1 जूल पर केल्विन है, तो नीचे वाला जूल पर केल्विन का पर केल्विन ऊपर जाके केल्विन बन जाएगा। दिस इज योर आंसर। इन डाउट? अब गाइस बहुत सी बात, या ओवर हियर डेल्टा जी इज 0, इट इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये तुम लोग प्रूव करके भी देख सकते हो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 वाई। ओके, क्वेश्चन है कि यहाँ पे डेल्टा जी 0 क्यों होता है, वाई? तो देखो, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैथमेटिकली हम लोग करके देख लेते हैं। तो डेल्टा एच है हम लोगों का 50,000 माइनस टेम्परेचर है हम लोगों का 125 मल्टीप्लाइड बाय 400 डेल्टा एस। तो 125 मल्टीप्लाइड बाय 400 अगर तुम लोग करोगे तो तुम लोगों को आंसर मिलेगा 50,000 एंड दिस विल बिकम 0, ठीक है। सो गाइज देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये इसी क्वेश्चन में एक एडिशन रहती है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन वो पूछते हैं, अंडर विच कंडीशन दिस रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस। मतलब हम लोगों को अभी जो टेम्परेचर दिया है वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आया, which is 125 Kelvin. So above 125 this reaction will become spontaneous, या below 125 this reaction will become spontaneous, ये तुम लोगों को बताना है। तो ये हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे प्रेडिक्ट करने के लिए तुम लोग मैथमेटिकली जा सकते हो, इस एक्सप्रेशन को यूज करो एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। और एल्स आई हैव अ सिंपल शॉर्टकट विच यू कैन फॉलो। डेल्टा एच प्लस है, एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों के दोनों प्लस है, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यूज प्लस रहेंगी, ये दोनों वैल्यूज अगर प्लस रहेंगी तो टेम्परेचर भी प्लस होना चाहिए। टेम्परेचर प्लस मतलब टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। एट हायर टेम्परेचर दिस रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस and at lower temperature this reaction will become non-spontaneous. Remember this is the easiest method. This is the easiest method. ये follow करना, मैं तुम लोगों को मैथमेटिकली बाद में एक्सप्लेन करके दे दूंगा, बट दिस इज द easiest way to find it, ठीक है। Let's take another question. Next question is same, A giving us 2B, ठीक है। Delta H is same to same question है guys, minus 50 kilojoule and delta S is minus 400 kilojoule. Find T equilibrium. यहाँ पे टी इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करो। हाँ, सिद्धेश वो कंडीशंस भी हम लोग ये करेंगे, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा बताओ टी इक्विलिब्रियम का। याद रखो टेम्परेचर कभी माइनस में नहीं रहता, माइनस टेम्परेचर कभी एग्जिस्ट नहीं करता। केल्विन स्केल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। बाय द वे देयर इज वन सिंपल मिस्टेक, मतलब यूनिट की मिस्टेक कर दी है मैंने। दिस शुड बी जूल पर केल्विन, माय बैड। हाँ, तो ये ओवर हियर आल्सो टेम्परेचर विल रिमेन सेम। यहाँ पे भी टी इक्विलिब्रियम इज डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, तो ये हो जाएगा 50,000 अपॉन माइनस 50,000 अपॉन माइनस 400। तो पहले तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस 0 0 कैंसिल हो गए, 500 डिवाइडेड बाय 4 इज 125 केल्विन। तो आंसर अभी भी सेम है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? नाउ इफ they'll ask you that at which condition reaction is spontaneous, above 125 Kelvin या below 125 Kelvin. So now
दिस इज माइनस, तो टेम्परेचर भी माइनस मतलब कम करना चाहिए, सो इट इज बिलो। तुम लोगों को शॉर्टकट समझ में आ रहा है? मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा लास्ट में, बट पहले शॉर्टकट वाइज तुम लोग जाके देखो, अगर शॉर्टकट समझ में आया तो बाकी एक्सप्लेनेशन तो हम लोगों को आए समझ में ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट वो भी आ जाएगा। तो बिलो 125 डिग्री 125 Kelvin this reaction will become spontaneous, and above 125 Kelvin this reaction will become non-spontaneous. Any doubt? If one is positive another one is negative तो क्या होता है वो अभी हम लोग प्रॉपर सब कुछ मिक्स करके देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, नाउ गाइस कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी देखते हैं किस किस को याद है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, आई गेस 2 लेक्चर पहले पढ़ा रहेगा हम लोगों ने ये। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी में एक थी एंथैल्पी की कंडीशन। अब मुझे बताओ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इट शुड इंक्रीज और इट शुड डिक्रीज। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, रिएक्शन में एनर्जी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? इट शुड इंक्रीज और इट शुड डिक्रीज। एंथैल्पी शुड बी डिक्रीज। याद रखो एंथैल्पी मतलब एनर्जी, एनर्जी अगर कम होगी तो सिस्टम स्टेबल होता है, याद है? एंथैल्पी शुड डिक्रीज, and decrease in enthalpy means exothermic reaction, and exothermic reaction means system is getting stabilized. And दूसरा एक क्राइटेरिया था विच इज एंट्रोपी। एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव, रैंडमनेस बढ़नी चाहिए, रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, एंड एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए। दीज आर द 2 पैरामीटर्स, मतलब यहाँ पे एंट्रोपी सॉरी एंथैल्पी नेगेटिव रहनी चाहिए, सॉरी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव रहनी चाहिए। एंट्रोपी एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव रहनी चाहिए, एंड एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। गाइस इफ दीज 2 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। फिर टेम्परेचर से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, रिएक्शन विल ऑलवेज रिमेन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब ये क्यों कैसे वो हम लोग जरा देख लेते हैं, चलो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला, इफ एंथैल्पी इज नेगेटिव एंड एंट्रोपी इज पॉजिटिव। अब इस सिनेरियो में क्या होता है, सो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो डेल्टा एच नेगेटिव है तो लेट्स अज्यूम दिस इज माइनस एक्स माइनस टी, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो इसको वाई पकड़ लेते हैं। तो गाइस माइनस एक्स माइनस टी वाई, माइनस एक्स माइनस टी वाई, तो दोनों नंबर अगर माइनस माइनस है, इफ बोथ द नंबर्स आर माइनस माइनस, तो तुम लोगों के डेल्टा जी की वैल्यू भी माइनस ही आएगी। टेम्परेचर कुछ भी हो तुम लोगों का डेल्टा जी ऑलवेज माइनस आएगा। गेटिंग इट? ओवर हियर डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड ऑलवेज नेगेटिव मींस रिएक्शन इज ऑलवेज, बताओ डेल्टा जी अगर नेगेटिव रहेगा तो रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। पास नहीं हो रहा है ना? अब इसकी अगर अपोजिट मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसने पूछा था अगर प्लस माइनस रहेगा तो क्या, तो प्लस माइनस में टेम्परेचर कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। तो याद रख दो, ये हम लोगों ने अभी आई गेस वी आर डिस्कसिंग दिस फॉर द थर्ड टाइम और सेकंड टाइम, मिनिमम सेकंड टाइम तो ये डिस्कस हो रहा है। तो वापिस एक बार जरा देख लेना अच्छे से वीडियो, तुम लोगों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ गाइस अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं इसका कंप्लीटली उल्टा कर दूं, तो अभी तुम लोगों को इतना तो खुद को समझ में आता होगा, मैथमेटिक्स तुम लोगों को सिर्फ अप्लाई करना है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच प्लस है तो ये हो गया प्लस एक्स माइनस टी, एंड डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव है तो ये माइनस वाई पकड़ लो। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस टी वाई, एंड ये दोनों प्लस है तो दोनों के एडिशन प्लस नंबर्स की एडिशन हमेशा प्लस ही रहेगी, तो दिस इज ऑलवेज प्लस, दिस इज ऑलवेज प्लस मीन्स दिस इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। वेरी नाइस, देखो सिंपल मैथमेटिक्स है।
अब अगर दोनों प्लस प्लस हो गए तो, अगर दोनों प्लस प्लस हो गए तो सो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसका भी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लो, ठीक है। दोनों अगर प्लस प्लस हो गए तो क्या होगा, तो ये प्लस एक्स माइनस टी वाई। अब गाइस, तुम लोगों को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, अच्छे से सुनना, तुम लोगों को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए। अब मुझे बताओ, प्लस एक्स माइनस टी वाई में हम लोगों को माइनस टी वाई माइनस साइन कब मिलेगी, इन दोनों की एडिशन माइनस में कब आएगी, तो इन दोनों की एडिशन माइनस में तब आएगी जब टी वाई का मैग्नीट्यूड एक्स के कंपैरिजन में बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? करेक्ट, तुम लोगों ने ये सुना है ना, मतलब जो बड़ा नंबर रहता है वो हमेशा जीत जाता है और उसकी साइन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो टी वाई का मैग्नीट्यूड बड़ा रहना चाहिए। अब टी वाई की वैल्यू कब बड़ी होगी, वाई तो कांस्टेंट है, हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज टेम्परेचर। एंड टी वाई बढ़ाने के लिए टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। गेटिंग इट? टी वाई बढ़ाने के लिए टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। तो एट हाई टेम्परेचर reaction is spontaneous, but at low temperature reaction is non-spontaneous। एंड मेरे ख्याल से इतना मैथमेटिक्स एंड ऑल वो करते बैठने के बदले ये प्लस टेम्परेचर भी प्लस, वैल्यू बढ़ जाती है, टेम्परेचर हाइड होना चाहिए। इतना याद रख दो, आई थिंक इट इज वे मोर इजियर। अब ये दोनों माइनस माइनस आएंगे सभी, तुम लोगों को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दोनों माइनस माइनस, टेम्परेचर भी माइनस होना चाहिए, मीन्स लो टेम्परेचर। एंड एट लो टेम्परेचर it is spontaneous, and at high temperature it will become non-spontaneous। कोई शक? हाँ, यही मैंने ऊपर बोला था, बट अभी ये हम लोगों ने प्रॉपर लिख दिया ना एकदम अच्छे से सब कुछ टैबलेट फॉर्म में। हाई टेम्परेचर मतलब अबव इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मीन्स अबव इक्विलिब्रियम, बिकॉज इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन नहीं होती, वो रुक जाती है। एंड उससे ज्यादा टेम्परेचर अगर हो गया तो इट इज स्पॉन्टेनियस। ओके, और एक क्वेश्चन लू। चलो, तो लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट डेल्टा जी आर, मतलब डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन फॉर 2N2O5 giving us 4NO2 plus O2। They have given us the chart in which substance, molar enthalpy, molar entropy, याद रखो that M stands for enthalpy and entropy, N2O5 and NO2 and O2, ठीक है। For N2O5 value of molar enthalpy is 33, NO2 11 and O2 के लिए molar enthalpy 0, क्योंकि O2 is a element, ठीक है। And this is 350, 240 and 200। जी आर इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, गाइस याद रखो। मैं हमेशा यहाँ पे आरएक्सन लिखता हूँ, बट एग्जाम में तुम लोगों को कुछ भी ऐसे सिंबल्स आ सकते हैं। तो जी आर, आर स्टैंड्स फॉर रिएक्शन। ये तुम लोगों को खुद से थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे अलग अलग सिंबल्स आ सकते हैं, मैं जितना हो सके मेरी तरफ से डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज करता ही हूँ। इस वजह से मैक्सिमम हम लोग कवर तो कर रहे हैं, बट स्टिल। जी एफ भी आ सकता है फॉर फॉर्मेशन, करेक्ट बोल रहे हो। अब जिसने ये पूछा है उसको कुछ अलग बोलना हो सकता है।
बाय द वे इनके यूनिट्स लिखना मैं भूल गया हूँ, जिसकी वजह से गलती हो सकती है। दिस इज किलो जूल पर मोल, यहाँ पे इस तरफ मैं यूनिट लिख देता हूँ। दिस इज किलो जूल पर मोल एंड दिस इज जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक क्या है, सॉरी, एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो गाइज सॉल्व करूं मैं। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। सो डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया ही नहीं है हम लोगों को, एच दिया है सिर्फ। तो डेल्टा एच इज, अगर तुम लोगों को याद होगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, याद है। तो गाइस प्रोडक्ट साइड पे देखो क्या है, प्रोडक्ट साइड पे 4 NO2 है एंड एक NO2 के लिए 11 वैल्यू है। तो 4 इंटू 11 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो 44। अब ऑक्सीजन की वैल्यू तो जीरो ही है, तो उसको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मेरे पास 2 है और एक की वैल्यू मेरे पास 33 है, तो 2 इंटू 33 66। 44 माइनस 66 माइनस 22 किलो जूल। अब डेल्टा एस, 4 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वापस सेम ही होने वाला है, तो 4 इंटू 240 डायरेक्ट कर दूं मैं। 4 इंटू 240 कितना होगा, 0 6, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 9, 960 प्लस एक ही ऑक्सीजन है तो यहाँ पे तुम लोग 200 ऐड करोगे तो प्लस 200 माइनस 2 इंटू 350 इज 700। तो इधर तो तुम लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा, ये 200 और ये निकल जाएंगे, 500 बच जाएगा। अब 960 माइनस 500 कितना आंसर आएगा, आंसर विल बिकम 460 जूल पर केल्विन। अब गाइस आगे क्या बचा, तुम लोगों को ये वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो -22 माइनस टेम्परेचर तुम लोगों को देखे रखा है 300 इंटू 0.46, इतना समझ में आ रहा है ना अभी, ये 0.46 क्यों, बिकॉज ये जूल्स में था तो किलो जूल पर केल्विन में ये ऐसे कुछ आएगा, दैट्स इट। एंड देन -22 माइनस, अब 300 से मल्टीप्लाई करो तो 8, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 12, तो 3 करेक्ट, एंड 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 138 एंड उतना ही आंसर आएगा। तो इन दोनों की एडिशन करो तो 40 एंड माइनस 160 किलो जूल, दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है, मतलब ये ऐसा टाइप की क्वेश्चन सिंपल है। गिब्स फ्री एनर्जी इज क्वाइट सिंपल, मतलब टॉपिक एकदम हल्का फुल्का है, इसमें ज्यादा कुछ और डिफिकल्टी लेवल इसमें कुछ ज्यादा आती है नहीं। इसी टाइप क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या, कौन से कंडीशन पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, हायर टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर, when reaction is always spontaneous, when it is not spontaneous, these kind of simple questions they will ask, ठीक है। So any doubt? Okay, so SM and HM is molar enthalpy and molar entropy, इसलिए यहाँ पे पर मोल लिखा है। बट जब तुम लोग रिएक्शन के लिए पूरा कैलकुलेट करते हो तो हम लोग गाइस यहाँ पे पर मोल नहीं लिखते, देखो यहाँ पे मैंने पर मोल लिखा है क्या, नहीं, बिकॉज मैंने यूनिट चेंज कर दिया, because over here it is for one substance, these values are for one substance, hence per mole is there, ठीक है। Okay, so guys with this we can declare that our chapter is over, ठीक है, and from next lecture onwards we'll start with equilibrium. So till then, see you next time, bye bye and God bless you. Yep. Bye everyone, bye bye bye.